हेलो एवरीवन, आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज मैं आई हूँ एक ऐसे डॉक्टर के घर जो हमेशा स्माइल पास ऑन करती है। ये डॉक्टर मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है डेंटिस्ट। शी इज़ ए डेंटिस्ट एंड आज 6 मार्च है और आज के दिन होता है नेशनल डेंटिस्ट डे एंड आई जस्ट थॉट टू थैंक हर by just having a small chit chat session with her ताकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकें एंड थैंक कर सकें कि आपने इतने मल्टीपल, नॉट इवन टू हर बट ऑल टू हर एंटायर डेंटिस्ट आउट देयर, thank you so much for sparkling such a healthy, beautiful smile on all the faces we the patients, if not the patients also, but thank you so much for passing such a wonderful smile. So let's hear it and let's go to her house. Excited! Yay! Hello, doctor. Happy Dentist Day. Thank you. Please here come. we are. Thank you. Hello, everyone. So, like I said, today we are going to speak to someone who is passing smile on everyone's faces. So here is with us Dr. Ruchi. Hello. Welcome. She has been practicing past 12 years and currently she is in Mumbai. पर ये डॉक्टर किस चीज़ की हैं? Well, she is a dentist and she has done MDS in periodontist. She is a gum specialist and आज हम उनसे बहुत सवाल पूछेंगे. So let's begin. Yes. सो सबसे पहले क्योंकि डेंटल है सो दिमाग में ये आता है ओरल हाइजीन. कितनी इंपॉर्टेंट है ओरल हाइजीन व्हेन इट कम्स फॉर टेकिंग केयर एंड स्पेशली द लिटिल वंस जो इन्फेंट्स होते हैं पैदा होते साथ उनके तो गम्स भी शायद डेवलप नहीं होते हैं. सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? So basically, whenever it is not necessary that there has to be a tooth where you have to take care. बच्चों के लिए गम्स भी इतना इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे आर द फाउंडेशन. अगर आप गम्स को ही मेंटेन नहीं करोगे योर टीथ आर नॉट गोइंग टू कम इन अ वेरी गुड पोजीशन. ओके. सेकेंड मेजर थिंग जो हमें ध्यान रखना है वो है अर्ली चाइल्डहुड केरीज. ओके. सो अर्ली चाइल्डहुड केरीज इज बेसिकली जो भी हम मिल्क देते हैं उनको, सिंपल थिंग मिल्क देते, उसी से ही अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो टीथ के ऊपर या गम्स के ऊपर कॉलोनाइज करके दे स्टार्ट अफेक्टिंग योर गम्स एंड टीथ. सो यस, इट इज वेरी मच नेसेसरी टू इवन क्लीन देयर गम पैड्स आफ्टर फीडिंग. आप चाहे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, बॉटल फीडिंग कर रहे हो, इट इज वेरी मच नेसेसरी. या तो आप एक वॉश क्लॉथ या फिर अपना फिंगर से गम्स को अच्छे से क्लीन करना है. So it starts from the day birth. one. Yes, from day one. Okay. Like the day you start feeding them, you have to start cleaning their gums. Okay. Okay. And this will continue for life Yes. now. Yes. पेरेंट्स कभी से ब्रश यूज करवाना शुरू करें? व्हेन इज द राइट टाइम कि हमको ब्रश भी देना है? So one thing is like a training. When your kid is in an infant stage, जब भी अगर सपोज दांत नहीं है तो आप उनको ब्रश से धीरे धीरे गम्स क्लीन करो. So one thing is they get accustomed to the concept of brushing. Second, even their gums gets cleaned up. Once they are into a age group where they have their first milk tooth. Okay. The time they have their first milk tooth, you need to start brushing their teeth. Okay. And this pattern continues till the time they have all their teeth and forever. So कुछ trick कैसे ब्रश करना है? If you can help us कि हमको So brush basically, कैसे करना yes, चाहिए? I can just show you like this is a brush. We generally demonstrate the kids that they can do some circular motion bahar. Okay. Okay, and that same thing they can continue inside the mouth. Okay. So for a kid, basically it's a circular motion. Okay. सब जगह पे उनको ऐसे राउंड ब्रशिंग करना है. Okay. Different types of brushes भी मार्केट में मिलते हैं. Yes. So कैसे स्टार्ट करना है? Like जैसे एक जो फिंगर वाला like you said. हाँ. I had that myth that I had that problem कि वो सिलिकॉन है. तो शुरू के टाइम पे आई वॉज नॉट इंकरेजिंग और आई वॉज नॉट कीन कि मैं वो लूँ. उससे अच्छा साफ कपड़ा लेके साफ हाथ करके मैं साफ करना पसंद करती थी. Yes. सो हाउ मच ओके इट इज टू यूज दैट? So either ways, if you are using a finger brush, but there are a lot of mothers who would not believe in using a silicone or a plastic thing inside the kid's mouth. So you can use a damp cloth and just clean it till the time you are in the stage where you don't have a tooth inside your kid's mouth. Okay. तब तक ठीक है, आप finger brush की जगह you can use a cloth. Once they have their milk teeth, you need to start using a brush. Okay. In that also you get different type of brushes. जैसा ये एक brush है,
ये वाला जो है ये सिर्फ किड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है, लाइक दे देमसेल्व्स कैन यूज इट बिकॉज इट हैज अ स्टॉपर इनसाइड, दे आर नॉट गोइंग टू पुट इट वेरी डीप। यस, सो ये एक है। सेकंड, दिस काइंड ऑफ सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस वेयर इट इज मोस्टली फॉर द ट्रेनिंग, you can ask them कि अरे आप ये use करो, let them also get used to the pattern of brushing. And secondly, there is one more thing called as tongue cleaner. ये काफ़ी हमारे उतना कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है, where you know use the tongue cleaner at a very early stage. Correct. सब लोग सोचते हैं यार टंग क्लीनर का क्या जरूरत है उनको, बट जितना आप उसको अर्ली एज पे करोगे बच्चों को, उतना ही they will get into that habit of using it. Okay. So आगे जाके then will not have a problem कि अरे आपने तो टंग क्लीन ही नहीं करने. Correct. Right. So this is a very important tool. Start as early as possible because whatever you're giving, milk है, food है, it is going to form a layer on your tongue. So yes, this is something which is very important. Later on, there is a normal toothbrush which will have a soft bristles. You can start using them once they have all their milk teeth. Is either the silicone finger or Yes. the damp cloth. Yes. Then once the first teeth is out, then we have to use this brush. This is just for their training. It will not basically clean because it doesn't have a bristles. It Okay. just has silicone imprints on both the side, right? So you can use this and this just for them to play, so that Okay. something as a tool to play. अभी तक तो this- मैं शायद इसको ब्रश करवा रही थी। So इससे कर सकते हैं, and then you can start using this. This has to be used at all the levels. Like So as ideally much as ये possible. ब्रश पहले करके फिर ये करना है या how it is? ये कभी So brush करके आप थोड़ा सा rinse करवा दो and then use tongue cleaner. And for rinsing, you have to use drinking water, not the tap water. Because 90% of the times kids might just take it inside. They Correct, don't know how correct. to spit. Correct. ऐसा. And once they are at the age of about 18 months to 2 years, you can start using a fluoridated toothpaste. Okay. Yeah. So you can start introducing them slowly at the age of 18 months and then get them used to that pattern कि हाँ brush के साथ में paste use करना ही है. वैसा. And ये कितना एक रहता है टेंशन कि अगर ये swallow हो गया so कितना रिस्की रहेगा. Right. So and how much amount to be taken? Because अभी भी मुझे लगता है कि शायद मुझे भी क्लियर नहीं पता है कितना अमाउंट लेना है. Right. कभी हम फ्लो में ज्यादा भी पेस्ट को स्क्वीज कर देते हैं. हाँ. So we have no idea कि एग्जैक्टली क्या है, तो हमको ही नहीं पता तो हम छोटों को कैसे करेंगे. So how much quantity and swallow करना कितना डेंजरस है. बस इतना सा. अभी तक कितना यूज करके कितने सारे पेस्ट खत्म कर दिए मैंने. It's so tiny. जितना साइज उससे भी कम है actually. Yes. So it is just rice sized, and even if they take it inside, it is okay. But then we have to train them that it is not supposed to be taken inside, and you have to spit it. अगर थोड़ा quantity अंदर जाता है, it is nothing to worry. अभी स्पिटिंग भी कौन से एज में, आई थिंक मे बी ये क्वेश्चन हम पूछना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल आई थॉट कि कितने एज में दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि अभी मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ, वो स्पिट नहीं करेगा, पूरा पी लेगा एंड देन किया आया करके ही विल से कि कर दिया मैंने. बट होता कितने टाइम में दे विल अंडरस्टैंड कि गार्गलिंग. Yes, so I think it is a very common question, and no, we don't understand कि what is the right age जब they will start rinsing on their own or no, maybe spitting water. But yes, generally 2 years is an age where they start understanding that they don't have to take it inside and they have to spit it up. So ideally अगर मुझे ब्रश करवाना है before the toothpaste, should I start do gargling या दोनों simultaneously? दोनों simultaneously also you can teach them. Okay. Yes. And followed by the tongue cleaner. Tongue cleaner is very very necessary. वो करना ही है. आप उसको ब्रश करवा के क्लीन कराओ. But after using the tongue cleaner also make a habit of doing a gargle. Or rinsing a mouth. Okay. And how many times we have to brush? Yes, again a very important question. So it is ideally that twice you have to brush, 2 times a day. That is one in the morning and one in the night. Okay? And again, like night before you go to bed, after having all your meals. ऐसा नहीं कि मैंने brush कर लिया फिर बाद में मैं chocolate खाया. So just before going to bed, you brush your teeth, drink some water, and then you go to bed. And morning also, after there is a different concept, like जैसे US में वो सब जगह पे वो लोग बिलीव करते हैं कि आप ब्रेकफास्ट करके फिर ब्रश करो. Because basically then another 7-8 hours your mouth is going to be clean till the time you have your next meal. But
एज एन इंडियन वी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट कि भाई हम पहले ही ब्रश उसके साथ ही ब्रश करते, एंड दैट हैज टू बी डन नॉर्मल जैसे आप करते हो. बट ओनली थिंग इज कि ब्रशिंग ड्यूरेशन हैज टू बी ओनली 2 minutes. So for the kid, what you can do is you can put a timer. अगर possible है तो you can use a sand timer, which is like interesting for them also. थोड़ा वो हाँ मजा भी आएगा उनको. Or else you can just set a timer कि भाई ये इतना ही टाइम में आपको ब्रश करना है. Okay. वैसा. Otherwise they'll just keep on doing. Or else they might not just do 2 minutes also. वो आधे सेकंड में करके हो गया. Correct. अक्सर होता है वो. हाँ वैसा. So उसके अलावा ब्रशिंग में आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट ऑफ वन ऑफ माय कजिन. वो उसके साथ आज तक ये है कि मोमेंट शी विल हैव एनीथिंग, स्पेशली द स्वीट आल्सो, राइट. कोई भी चॉकलेट खाया है वो ब्रश करने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द टाइम. अगर अभी भी उसने खाया होगा, अभी आफ्टरनून में भी जाके शी विल ब्रश इट ऑफ. तो ये शुगरी आइटम या एनीथिंग आपके कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनी ये सब में बोला जाता है तो शुगर कंटेंट रहता है, दैट इफेक्ट्स द टीथ एंड कैविटी वाला फेज होता है. इज इट सो मच रिलेटेबल या so generally it depends on the tooth structure also. If a tooth is very much prone to decay, if they have the kids have a very high caries index or the decay index, even if they don't eat like sweets at all, no sugary foods, they'll still have cavities. अच्छा ओके. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर सपोज मैंने कुछ मीठा खाया तो मुझे इमीडिएटली ब्रश करना चाहिए या नहीं. इफ यू आर इन अ सिचुएशन और circumstances where you cannot brush, आप एटलीस्ट सिंपली गागल करो, like you just rinse your mouth. But yes, after having something sugary, you have to clean your mouth. Okay. If you are at home, it is better to brush it. If you are not, you can just simply rinse your mouth so that that sugar layer doesn't form on your tooth. Okay. And when is the right time कि हमको आपके पास अप्रोच करना चाहिए, ऐसे बेबी को कब मिलवाना चाहिए, राइट? फॉर जब डेंटल का इश्यूज हो दांत का तभी या उसके पहले भी? सो बेबीज से भी ज्यादा इवन एडल्ट्स एट दिस एज दे स्टिल हैव अ फियर ऑफ अ डेंटिस्ट. ट्रू. वेरी ट्रू. सो बेबीज को तो वो होने ही वाला है. सो यस, आई मीन it is something in a very friendly way. Try to get them to a dentist when they have their first tooth. Or even we would suggest before they get their teeth, like in an early toddler phase when they are in the age group of maybe 10 to 12 months, you try to get them to the dental clinic so that at least the doctor or the dentist can evaluate their gums, their overall jaw development, and then guide you respectively for how their teeth are going to come, or no, maybe some maintenance or hygiene wise some steps which could be taken. तो वो चीज के लिए जितना जल्दी हो सके, yes, it is ideal maybe 10-12 months पे आप एक बार दिखाओ. एंड जैसे जैसे आपको लग रहा है कि हाँ अभी सारे टीथ उसके हैं, या एट एनी पॉइंट यू फील कि कोई दांत पे ब्लैकिश कुछ स्पॉट आ रहा है, तो yes, you do not wait कि भाई ये तो गिर जाएगा, परमानेंट टीथ आएगा. You have to visit a dentist. The blackish spot से थोड़ा समझ में आ जाता है. Yes. अभी आपके बातों से लग रहा है मैंने क्या क्या मिस किया है अपने बच्चे के साथ. I'm not taken. Parents should brush their child's teeth until they are old enough कि उनको खुद ही सेल्फ कब से शुरू करना है कि ये सेल्फ अपने हिसाब से ब्रश करना शुरू कर. So yes, brush their kids' teeth until the time they are understanding. But ऐसा नहीं है कि हम उनको खुद से करना सिखाए नहीं. Correct. Right. So till the time let them learn it. आप थोड़ा सा 2 मिनट अगर आप उसके पीछे दे रहे हो, the kid can brush like for 30 seconds to see कैसे कर रहा है, and rest 1 minute you can brush their teeth so that they also get that habit of brushing, plus you are making sure कि भाई वो बराबर brush हो रहा है. So that's why it is very important कि parents have to brush till the time they can brush till the time the kids can brush efficiently. Okay, so any कोई specific age नहीं बोल सकते हैं कि ये age में handle कर सकते हैं. Exactly. ओके. व्हेन इट कम्स कि बच्चा जब पैसिफायर या सूदिंग बोला जाता है जब उनके टीथ आते हैं, बट कहीं ना कहीं उससे क्या इनके टीथ ग्रोथिंग साइकिल में भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? द शेप बिकम्स या चोच टाइप मुंह निकल जाता है. डज इट हैपन एक्चुअली में कि कब तक या तो फिर फीडिंग लेना है या सूदर देना है? टिल व्हाट एज वी हैव टू गिव? So again, there are a lot of different thoughts I would say on this. कि एक तो teethers, soothers, वो सब का एक main purpose होता है कि जो उनको teeth आ रहे हैं, जो gum पे itchiness हो रहा है या irritation हो रहा है, उसको थोड़ा सा help करने के लिए होता है, like to reduce that inflammation.
बट इफ दे कंटिन्यूअसली कीप ऑन बाइटिंग ऑन इट, तो वो क्या करता है, आपके जॉ डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. It starts affecting the growth of your upper jaw and your lower jaw, and ultimately it affects the teeth position also. Okay. So सिर्फ वो चीज एक नहीं होता है, there are a lot of other factors like genetics या jaw development का जो growth हो रहा है वो भी affect करता है. But yes, ideally we would say कि आप जो प्लास्टिक या सिलिकॉन के टीथर्स या पैसिफायर्स या सूदर्स यूज कर रहे हो, उसकी जगह पे try to have something which is healthy for them. Basically incorporate a fruit or a vegetable, something which you can freeze it, like a carrot or something where you can give them, वो कुछ harm भी नहीं होगा, they are not able to cut it or bite it, and it will still serve the purpose of gum irritation. उसको भी वो itchiness वगैरह को soothe कर देगा, inflammation कम कर देगा, and it will help reducing the irritation to the kid also, वैसा. But only thing is it has to be frozen. अभी फ्रोजन से मैंने भी ऐसे कई रील्स देखे थे कि ऐसा हाँ, करना चाहिए, राइट. बट आई ऑलवेज हैव दिस थिंग इन माय माइंड कि ये ठंडा है तो Right. डायरेक्टली ठंडा देना भी इज इट गुड उनके दांत के लिए, ओवरऑल उनको डेवलपमेंट में हार्म कर सकता है, या इट्स स्टिल फाइन टू गिव दैट डायरेक्टली फ्रीज किया हुआ? Right. So again, like इस पे भी ना you have to judge based on your kids overall health. अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा बच्चे को मैं कितना भी ठंडा दूं उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, the kid is not very prone to having cold, cough या ऐसा, तो आप उसको फ्रोजन दे सकते हैं. there should not be any harm. अगर आपका किड थोड़ा सा भी अगर ठंडा पानी पी लेता है, सपोज लाइक if he or she is having cold water, सो गला पकड़ लेता है या सोर थ्रोट हो जाता है, then you give them on a room temperature. ओके. आप सिर्फ उसको थोड़ा सा हल्का ठंडा पानी में डुबा के फिर भी दे सकते हो. ओके. वैसा स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट, सूदिंग ही करेगा. हाँ, सूदिंग तो करेगा ही. ओके. वैसा एक चीज होती है आजकल बहुत कॉमन है, कैविटी इश्यूज. मतलब आई हैव सीन, आई हैव कम अक्रॉस मेनी पेरेंट्स जिनका ऑलमोस्ट अभी ऐसा लगता है कि मुझे कि हर कोई डेंटल ट्रीटमेंट के लिए बहुत कॉमन हो गया फॉर द लिटिल वंस. राइट. तो एक चीज हो जाती है कि जब तक मेरा मिल्क टीथ है, अगर उसमें कैविटी आ गई है या मेरा दांत सड़ने लग गया है, एंड द पेरेंट्स थिंक कि ठीक है ना अब तो परमानेंट टीथ आ ही जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट्स ओके, परमानेंट टीथ आ जाएगा फिर ये वाला हेडेक नहीं होगा, तो अभी कौन जाए डॉक्टर के पास, लेट्स नॉट गो टू द डेंटिस्ट एंड लेट्स नॉट विजिट, होने दो जो चल रहा है. तो ये अप्रोच सही है क्या, ऐसे ही करना चाहिए, और आइडियली द पेरेंट्स शुड डू समथिंग एल्स की ट्रीटमेंट कराना चाहिए, व्हाट शुड दे डू? सो इसमें भी ना आई वुड लाइक टू आस्क द पेरेंट्स की क्या गारंटी है कि द परमानेंट टूथ विल नॉट हैव अ कैविटी. अगर हम वो इस चीज सोच रहे हैं कि अगर ये तो मिल्क टीथ है इसमें कैविटी होगा, ठीक है, इसके बाद में परमानेंट टूथ आ ही जाने वाला है, तो ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई परमानेंट टूथ में कैविटीज नहीं होगा. Correct, correct. So कोई भी फॉर्म में अगर कैविटी इज देयर ऑन योर मिल्क टूथ, यू हैव टू गेट इट ट्रीटेड, बिकॉज उस पे जो भी बैक्टीरिया है दे आर गोइंग टू अफेक्ट द परमानेंट टूथ बाय डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द गम्स एंड द टीथ. ओके. वैसा तो उसका मतलब अगर सेकेंड थिंग आपके जो मिल्क टीथ है दे ऑल्सो एक्ट एज अ स्पेस मेंटेनर. अगर सपोज वो गिर गए और परमानेंट टूथ के लिए जगह नहीं है तो अपने आप ही आगे पीछे आने लगेंगे. करेक्ट, राइट. सो इट इज समथिंग कि सिर्फ उसका एक पर्पस नहीं है कि भाई हाँ दांत है तो खाने के लिए यूज होने वाले. करेक्ट. इट हैज मल्टीपल रोल टू प्ले. सो जितना इम्पोर्टेंट आपका परमानेंट टूथ है उतना ही इम्पोर्टेंट मिल्क टूथ है. ओके. So having a cavity inside and उसको छोड़ के ये तो गिरने ही वाला है. I mean that is not what should be done. It has to be ideally treated. Okay. वैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स को रहता है, इनिशियल फर्स्ट ईयर में बोलते हैं शुगर मत दो, सॉल्ट मत दो, एंड कहीं ना कहीं आई माई सेल्फ स्टार्टेड लिंकिंग कि हाँ ठीक है शुगर नहीं दूंगी तो ये दांत खराब नहीं होगा, कैविटी नहीं होगा. ग्रेजुअली आई रियलाइज कि नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आई मीन शुगरी आइटम ना देने का रीजन वन ऑफ द कुड बी कि बच्चा मोटा या वो चीज खा ले लगेगा, हाँ, तो वो नेचुरली हेल्दी चीजें छोड़ देगा. राइट. सो आइडियली व्हाट इज द अप्रोच एज अ डेंटिस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि शुगरी आइटम्स देने चाहिए पेरेंट्स को कि नहीं देने चाहिए पोस्ट 1 year ऑल्सो? So as you said ना कि भाई वो सिर्फ टीथ के कैविटीज के लिए नहीं है, इट इज गोइंग टू अफेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑल्सो. जैसे अगर बहुत ज्यादा शुगरी चीज खा रहा है तो बच्चों में बहुत कॉमन चीज होता है ओबेसिटी.
करेक्ट लाइक यू डोंट रियलाइज, अपने को लगता है कि अरे अपना बच्चा बहुत क्यूट है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, बट देन एट अ वेरी माइनर लेवल आई वुड से कि हाँ वो ओबेसिटी के कुछ साइंस है. करेक्ट. सेकंड थिंग, ऑलरेडी द किड्स एट दिस जनरेशन और दिस एज दे आर वेरी हाइपर एक्टिव आई वुड से. करेक्ट. तो जो भी शुगर वाला कंटेंट है ना, दैट इज जस्ट गोइंग टू एग्रीवेट दैट थिंग आल्सो. मैं यही पूछने वाली थी, does this actually happens or not? Yes. And third thing, अगर आपका healthy part से, I mean the kid is getting all the nutrition without having the sugary food, then there is no need for that sugary food. Correct. Understood? आपके लिए मेन आपको चाहिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स. आई गेट इट, बट वो फैट्स को शुगरी या स्टार्ची होना जरूरी नहीं है. करेक्ट. यू कैन गेट इट फ्रॉम द अदर फूड कंपोनेंट्स आल्सो, फ्रॉम द फ्रूट्स और द नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल शुगर्स में जो आ रहा है वैसा. करेक्ट. सो हो सके उतना, आई वुड से नॉट इवन 1 year, उसके बाद भी जितना हद तक आप शुगर प्रिवेंट कर सको, लाइक व्हाइट शुगर, अवॉइड इट. अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको देना है तो यू कैन यूज गुड़ या जैगरी. वो दैट इज स्टिल अ सब्स्टिट्यूट व्हिच कैन बी यूज्ड पोस्ट 1 year वेयर यू फील कि नहीं भाई चलो हमको देना ही है बच्चों को. Otherwise it's not okay. Till the time they, because see they are in a stage where they are learning things, they're developing the taste, and sugar is something that we all of us would love sugar things. Correct. Right. So the moment they develop that taste, they're going to leave that other things which is non-tasty and non-sugary. Vaisa. So till the time they have not developed that taste, let it be there. I mean, not just avoid giving them sugars. Okay, ठीक है. It's okay if I skip the brushing part at night kabhi kabar. Ideally, what you have to. Yes. So I mean, if you skip it, it is fine. We would say कि it is not like अगर आपने skip कर दिया तो कोई बड़ा dangerous thing हो गया है. But then, जितना हो सके, try to make it a habit that you brush at night. Because night brushing is as much as important as your morning brush. What I usually think about it, kabhi kabar my son also misses it. Next day मैं बहुत टेंशन में रहूंगी, then somehow I will convince myself कि नहीं रात में पानी तो पी लिया था या बीच में उठ के पानी पिया तो शायद हो गया होगा, just to satisfy me. Right. But ऐसा कुछ है, जैसे कई बार अभी भी होता है that I have brushed him, but वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खा रहा है. हाँ. एंड देन पानी पी के सो जाता है. वो ये अप्रोच सही है कि गलत है? आई नहीं. सो ब्रशिंग, जो रात वाला ब्रशिंग है, इट हैज टू बी डन जस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड. उसके बाद में आपको मुंह में कुछ भी नहीं डालना है. अच्छा. इफ योर किड इज गोइंग टू हैव समथिंग, मे बी फ्रूट्स और एनीथिंग व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, वो होने के बाद आप ब्रश करके फिर ही उसको सुलाना है. अच्छा. ऐसा नहीं कि ब्रश करने के बाद भी चलो भूख लग रहा है तो मैं दे देती हूँ, फिर पानी पिला दो, उससे नहीं फर्क होगा. तो मतलब आई हैव टू नाउ क्वेश्चन मैं गड़बड़ कर रही हूँ. फ्रूट जूसेस जो मार्केट में मिल रहे हैं, एंड इवन द नेचुरल फ्रूट जूसेस, राइट, दोनों ही टीथ के लिए हार्मफुल हैं क्या? मतलब अगेन इट्स अ मिथ और अ फैक्ट. हाँ. सो इट इज हार्मफुल तो मैं नहीं बोलूंगी. सी, if you are giving them fresh fruit juice, like you make it at home, you give them a fresh fruit juice, it is healthy. But till the time your kid can have a raw fruit directly, that will have more fibers than the juice. Correct. So market available वाला juices है, that we would strictly not recommend कि आप वो तो देना ही नहीं है, because it is not going to have एक तो freshness of that juice. Second, it will have more of sugar content. Correct. अगर आपको देना ही है आपके बच्चों को, तो you can still give them homemade fresh juice. Avoid putting any sugar in it. And that also, अगर आपका बच्चा रॉ फ्रूट खा रहा है तो पहले वो दीजिए. ओके. That is going to give more benefits to the kid rather than the juice. ओके. बट ऐसा तो नहीं ना कि मैंने जूस पिया या चॉकलेट खाया तो इमीडिएटली ब्रशिंग करना है? कर सकते हैं तो बेटर. अच्छा. ओके. बिकॉज थोड़ा सा शुगर कंटेंट होने ही वाला है. लाइक इवन इफ यू डोंट पुट योर शुगर, योर फ्रूट्स विल हैव नेचुरल शुगर. करेक्ट. तो अगर आप घर पे ही हो तो एटलीस्ट ब्रश नहीं कर सकते, आप रिंस कर लो. Okay. Take drinking water, rinse your mouth so that at least it doesn't form a layer. Okay. Electronic brushes भी आजकल बहुत चल रहे हैं. I'm not sure वो little ones के लिए भी आते हैं क्या? For us तो market में available हैं. तो for the little ones अगर आते हैं तो वो कितने effective हैं? Should we use or या these manual brushes are perfectly fine to use it? So till the time we can brush or the kids can brush, we should always use the manual brush. Okay. Electronic brushes mainly उनके लिए था जिनके लिए dexterity is a question. Okay, भाई मेरा हाथ का मूवमेंट है वो इतना नहीं हो पा रहा है, या
कोई कंडीशन है कि भाई टीथ का पोजीशन ऐसा है कि मैं कितना भी अच्छा ब्रश करूँ, इट इज नॉट हैपनिंग. अच्छा, ओके. Because that same thing we can manually also do the same movements which is inbuilt in the power toothbrush. Right. So जितना हो सके try to do it with the manual brush. We would Okay. recommend to use a manual toothbrush and not the electric brush. Okay. वैसा. Chewing sugar free gums, ये भी बच्चे आजकल कर ही लेते हैं. 5-6 साल वाले बच्चे बहुत इजीली खाते दिखते हैं. So that also will impact. या वो एक्सरसाइज, लोग ये भी बोलते हैं कि हम खा रहे हैं, एक्सरसाइज हो रहा है, जॉ लाइन हमारा अच्छा हो जाएगा. हाँ, नहीं सी, अगर ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई अब च्युइंगम खाओगे उससे कुछ जॉ लाइन अफेक्ट करेगा. देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ अबाउट इट. कभी कभी हम बोलते हैं च्युइंगम खाने को शुगर फ्री वाला बिकॉज सपोज कोई मसल्स का कुछ रीजन लग रहा है हमें कि भाई हाँ ये मसल्स को थोड़ा एक्टिवेट करने का जरूरत है या ऐसा कुछ है, तो बट 90% इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके. शुगर फ्री खाओ या शुगर वाला खाओ, च्युइंगम का कोई रोल नहीं है एज सच. मतलब इट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प योर मसल्स. करेक्ट. वो तो आप खाना खा रहे हो तो उसमें भी तो होने ही वाला है. करेक्ट. And if you still want to eat chewing gums, you have to eat with the sugar free wala. Okay. You cannot afford to have, because recently I had a kid, like he was a gym freak, I would say. बहुत training करता था and every time he used to train he used to have chewing gum. अच्छा, okay. इतना सारा cavities, the mother was shocked कि अरे इतना सारा cavities कैसे हो गए. He's a teenager boy. तो suddenly like all his molars and teeth had cavities. Okay. तो वही चीज हुआ, लाइक उसको पता नहीं था कि शुगर वाला च्युइंगम खा रहे एंड द किड एंडेड अप इनटू सो मेनी कैविटीज. ये नया है, मतलब नॉर्मली हम च्युइंगम खरीद लेते हैं, वी डोंट सी ये शुगर फ्री है, शुगर वाली है, हम कैसे भी खा लेते हैं. अच्छा, ऑल्सो ये ब्रेड भी इम्पैक्ट करता है क्या? ब्रेड ऑल्सो डज, ऐसा बोलते हैं इट कंटेन्स शुगर, जो लिखा रहता है इनके में, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट देयर जॉ. यस. सो ब्रेड्स जनरली वी वुड से ना कि आप उसके साथ में कुछ भी रॉ सैलेड या something which is more fibrous include karo diet, maybe in the form of sandwich or something, because the bread it will start creating a layer on your tooth. वो जो soft debris बन जाता है ना टूथ पे, they only ultimately start forming a cavity. Okay. अगर आप वो debris clean नहीं करोगे, उसी के अंदर का बैक्टीरिया है वो multiply करना स्टार्ट कर देगा. Okay. Ideally, बहुत what is the big mistake parents do when it comes for oral hygiene? They tend to ignore it a lot. Okay. Yes. Thinking के सेम मिल्क टीथ ही है, हाँ. गिर जाएंगे, परमानेंट टीथ तो आने ही वाले हैं. But then, if it was not really required, I mean, nature wouldn't have created it. Correct. Directly permanent दे देते थे. Correct. Right. So that's the only part in your body you are getting a chance कि भाई आप एक में गलती करो तो दूसरे आ सकता है. Very nicely said. You are never going to get any other part of your body repeated. Correct. Right. वो inbuilt ही आई थी. हाँ, inbuilt ही आए थे. So अगर nature, if it was against the nature, the nature wouldn't have given you the two sets of teeth. Correct. Right. So if it has been given in your body, it has some purpose. Correct. वैसा. तो वो सबसे बड़ा एक चीज है जो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगी कि प्लीज डू नॉट इग्नोर योर बेबीज मिल्क टीथ. इतना ही जितना आपका परमानेंट टीथ पे आप ध्यान देते हो उतना ही मिल्क टीथ पे ध्यान देना जरूरी है. Very nicely said. Also, when it comes कि schools में प्री प्राइमरी जो schools especially वो या even class 1, class 2 age group में भी, what awareness the schools should do when it comes for the oral hygiene? Because I remember when I was also part of a school, so we conduct dental sessions, oral hygiene, where the doctor visits, checks it and recommend या एक slip बना देता है कि आपके ये बच्चे में ये है. And I remember in my last school it was around, I mean 99% only one child was cavity free और the healthy teeth होते हैं. Right. तो ये वो once in a year हर स्कूल करता है, बट उसके अलावा anything else we can do where you know the right amount of awareness can be spread? So same thing, like whenever you have some fun session or some education session among your other periods of your teaching schedule, I would say you can start incorporating some videos which will have importance of the teeth. Correct. Like in a funny way, try to show them that the teeth are important. Correct. So that kind of motivational or educational videos can be shown to them, so that it is not something कि भाई साल में एक बार जब भी डॉक्टर आएगा तभी उसका importance पता चलेगा. Correct. कभी भी जब भी आपको वो मौका मिल रहा है, when you are planning some activities for the kids, try to incorporate it in a way that जितना आप बॉडी को importance दे रहे हो सिखाने के लिए, उतना आपके teeth भी important है. Correct. वैसा. So that
can be incorporated, maybe na some educational or some motivational videos, some funny videos, or I would say something जो बच्चों को एक motivation भी देगा, और it has to be in a funny way also, कि जो interesting लगेगा उनको। करेक्ट। वैसा। अच्छा, अभी जैसे द टॉडलर्स हैं, वो चलना सीख रहे हैं, क्रॉलिंग कर रहे हैं, दे डोंट नो, सोफा से जंप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है दैट यू नो दांत में लग हाँ। जाता है या टीथ में ब्लीडिंग आ जाता है। राइट। सो आइडियली व्हेन अभी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे या हमको लगे कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, देखते हैं, वो भी एक अप्रोच है। तो आइडियली व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एट होम हम कर सकते हैं? इज घी अप्लाइंग या घरेलू कुछ और नुस्खे करने से ठीक हो सकता है क्या? और वी हैव टू रश ओनली इन ईदर ऑफ द केसेस? हाउ वी कैन स्टॉप दैट? बिकॉज बाकी जगह वुंड होता है या नॉर्मल लगता है, हम कॉटन से डैप कर लेते हैं, वहाँ नहीं कर सकते हैं। राइट। तो कैसे क्या करना चाहिए उसके लिए? सो अगेन, जैसे अगर टूथ ब्रेक हो गया है तो आप वो टूथ पीस को संभालो and go to a dentist. That is like an emergency situation. अगर ऐसे हुआ है कि भाई आपका लिप्स पे अब्रेड हो गया है या लिप्स पे कट हो गया है, गम्स पे इंजरी हो गया है, बट योर टूथ इज इंटैक्ट, टूथ पे कुछ हार्म नहीं हुआ है, तो आप इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए कॉटन लगा सकते हैं। इनसाइड द माउथ ऑल्सो यू कैन प्लेस द कॉटन, बट सबसे बेस्ट चीज है आप आइस लगाओ। अच्छा, ओके। यस, एनी कोल्ड थिंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्लीडिंग, स्टॉप करने में भी हेल्प करेगा। एंड प्लस आसपास का एरिया अगर स्वोलन अप हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट इंजरी, या गिर गया है या लग गया है उसकी वजह से, तो दैट आइस विल हेल्प इन दैट। ओके। सो इमीडिएटली आप कुछ भी ठंडा पैक उधर लगा दो। पेरेंट्स ऐसा क्या करें सो दैट द किड्स गेट दैट इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल फैमिली, एक सेट रहे एंड द किड्स गेट एन एग्जाम्पल कि नहीं मैं ये काम, मतलब आई शुड ब्रश माई टीथ, आई शुड इंश्योर कि मैंने कुछ स्वीट खाया है या कुछ ऐसी चीज खाई है विच कैन इम्पैक्ट, सो आई शुड डू दैट। सो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, या हम क्या करें? सो बच्चों को सिखाने के लिए फर्स्ट थिंग द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीथ। सो व्हेनेवर वी टेल द पेरेंट्स कि भाई आप बच्चे को ब्रश कराओ, तो व्हाट यू कैन डू इज व्हेनेवर यू आर ब्रशिंग इन द मॉर्निंग, दैट सेम टाइम पे ही आप बच्चे को ब्रश कराओ। करेक्ट। सो दे कैन ऑल्सो सीक दैट इज अ मॉर्निंग रिचुअल फॉर योर फैमिली। करेक्ट। आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले ब्रश होता है, फिर ही आप बाकी का चीजें करते हो। सो मेक इट लाइक अ फैमिली रिचुअल कि भाई ये चीज होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप होगा अपना फैमिली में। सेकेंडली, इफ यू आर ऑल्सो डूइंग इट, सो दे विल थिंक अरे हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट राइट। सो वैसा करके हम एक चीज उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट जो भी चीज आप करोगे दैट सेम थिंग योर किड इज गोइंग टू फॉलो। करेक्ट। बी इट योर डाइट, बी नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंस टू योर टीथ, और नो सिर्फ एक बार ब्रश कर लिया, रात में छोड़ लिया, तो वो सेम चीज आपका बच्चा करने ही वाला है। इफ यू डोंट डू इट एंड यू एक्सपेक्ट द किड कि नहीं आपको तो 2 टाइम ब्रश करना ही है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके। सो वी हैव टू फर्स्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन आवर स्केड्यूल और इन आवर मॉर्निंग रिचुअल कि भाई ये करना ही है। उसके बाद ही हम बच्चे के पास में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये भी वो करेंगे, फॉलो करें। यस, फॉलो करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू अ डेंटिस्ट एवरी 6 months बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि भाई हम एक बार एक ट्रीटमेंट करवा देते हैं, फिर हम सालों तक डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। करेक्ट। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जब प्रॉब्लम आती है तभी एग्जैक्टली। हाँ, बिकॉज majorly it is not giving you so much pain or discomfort कि भी आप immediately जाओगे। and second, you cannot see with your naked eye कि अंदर क्या problem है। Correct. The moment you see something black or see something which is like grossly decayed or something like that, you will rush to the dentist. Correct. Right. So it is both ways. मतलब एक तो वो इतना पेन नहीं देता है, या जब भी पेन देता है तभी वो इतना सिवियर देता है कि हमको immediately डॉक्टर के पास जाना है। Correct. So I would always come to a conclusion कि भाई आप every 6 months visit your dentist. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Go to a dentist, उनसे समझो कि मैं जो कर रही हूँ बराबर है। If I am completely fine, good, you can carry on for another 6 months. अगर कुछ भी preventive points या steps आपको करना है, that dentist can guide you with that. Right? अगर कुछ छोटा cavity हो रहा है, आप उसी को उसी level पे stop कर सकते हो by getting it treated. Correct. So at every 6 months, a dental appointment is very, very necessary for your kids, for your own self. Yes, चाहे adult हो, kids हो, it is very much important. I think I can also add कि जो family priorities आपने बोली थी Yes. कि वो घर से शुरू होती है, ये भी एक चीज वो add कर सकते हैं कि साथ में पूरी family can come yes and have a Get checkup the checkups every done. 6 months में। yes कौन सी एज में we start losing the baby teeth for the permanent
एंड जब लूज करना शुरू करते हैं, हाउ वी कैन गाइड आवर चिल्ड्रन, क्योंकि तब तक वो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, थोड़े सेंसेस में हो जाते हैं, बिकॉज जब इन्फेंट रहते हैं वी कांट गाइड देम, उनको डिस्कम्फर्ट होता है, वो इरिटेट होंगे या दे माइट फॉल सिक, एंड हमको समझ उस ट्रिक से समझ में आता है कि हाँ दांत आने वाला है, बट फॉर द परमानेंटली दे आर इन द अंडरस्टैंडिंग फेज, तो व्हेन वी शुड स्टार्ट गाइडिंग देम कि बेटा भी आपका टीथ टूटने वाला है, सो बी अवेयर, या डिस्कम्फर्ट होगा, तो हाउ वी कैन कोप अप विद इट। सो बाय द एज ग्रुप ऑफ आई थिंक 6 years आपके परमानेंट फर्स्ट टीथ आने लगते हैं, या परमानेंट फर्स्ट मोलर्स कम एट द एज ऑफ 6 years। उसके बाद में अराउंड 6.5-7 तक आपके फ्रंट के जो टीथ है वो गिर के नए आने स्टार्ट हो जाते हैं, 7-8 years तक। सो दैट इज द टाइम फ्रेम वेयर यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड कि प्रोबेबली अगर ये गिरते हैं, ये थोड़ा सा हिलेंगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू इन्फॉर्म द पेरेंट कि भाई ये हिल रहा है या दर्द हो रहा है, इफ देयर इज एनी डिस्कम्फर्ट अबाउट इट, वैसे। But one more thing I want to emphasize for the parent is that it is a normal thing. The parent also doesn't have to get really anxious or apprehensive about it कि अरे बच्चे का दांत गिरने वाला है, correct, right? It is a normal process, and even if it falls, that is okay. There is a permanent tooth which is going to come there, but you have to be in an environment कि भाई आप बच्चे को डरा नहीं रहे हो कि भाई तू अभी ध्यान नहीं देगा तो ये दांत टूट जाएगा, देखो ये दांत ऐसे खराब हो जाएगा। You are actually scaring the kid from the normal process, correct, right? तो वो चीज नहीं करना है उनको सिर्फ एजुकेट करना है कि भाई आप अगर दांत हिल रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, आपके मुंह में आ रहा है, इन्फॉर्म द पेरेंट कि भाई अब ऐसे ऐसे हो रहा है। पेन रिलेटेड अगर होगा तो yes, there are certain medications which we can give to the kid, but generally required नहीं होता है, they can bear that much pain। उतना लूजिंग में पेन नहीं होता जब तक टूथ इरप्ट हो रहा है, like when they are getting a new tooth, it is more of that itchiness or pain and discomfort, and when they are losing it, there is a natural phenomena तो उसकी वजह से वो अपने आप गिरने लगते हैं। correct, so that time they really don't have much pain in it। तो जब ग्रो हो रहा है उस समय anything we have to take care कि कुछ करना चाहिए? सेम जैसे हमारे मिल्क टूथ में हमने केयर किया था, वैसे लाइक यू कैन गिव देम समथिंग कोल्ड टू च्यू ऑन इट। उस टाइम पे दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, यू कैन यूज मोर ऑफ वेजीज एंड फ्रूट्स रादर देन एनी टीथर या एनीथिंग, बट देन दे गेट अकस्टम्ड टू इट, हो जाता है। ठीक है, वो एज भी थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। All right, so that was Dr. Ruchi. So with this we hope कि we have resolved many questions, और नहीं हुए हैं तो फिर से comment में डाल दो, and we'll again catch up with her and we'll try to resolve it. So thank you so much. Thank you, doctor. Thank you.